Hello students, good morning to all of you. This lecture is for plus 2 medical and non-medical class. Now ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ SHE ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ SHE ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ SHE ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, SHE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਬਾਰ ਔਰ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ 1 ਮੋਲਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ 298 ਕੈਲਵਿਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ SHE ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ SHE ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ SHE ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 300 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 298 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ 300 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਜਾਂ 200 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 0.1 ਮੋਲਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 0.01 ਮੋਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ SHE ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਰਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਨਰਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨਰਸਡ equation. Now what is Nernst equation? Nernst equation is a relationship between cell potential या electrode potential and concentration of the cell. ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾਂ E ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ E ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ E ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਂ E ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ E ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈਗਾ N ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਲੱਸ N ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ MS ਸੋਲਿਡ। M ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ N ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੇ N ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, M ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕੁਅਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ m ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ठीक है जी। तो इत्थे m की की हो रही है रिडक्शन हो रही है, मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिडक्शन फॉर्म च लिख लिया। ਆਪਾਂ इत्थे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके वेखनी है। तो नर्स्ट इक्वेशन किवें अप्लाई होगी, E m n पॉजिटिव टू m सॉलिड, जिवें आप सैल पोटेंशियल लिखते हैं वो भी लिखना है, रिडक्शन फॉर्म इत्थे लिखनी होंदी है, इज इक्वल टू E नॉट m n पॉजिटिव n, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसा लिखना कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हो गई अपनी नर्स्ट इक्वेशन। देखो नर्स्ट इक्वेशन के की है, ये जोड़ा सैल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट पर है, स्टैंडर्ड स्टेट ये सैल पोटेंशियल किसी भी हो स्टेट पर है, एनी स्टेट एट एनी स्टेट, किसी भी हो स्टेट पर। आर यूनीवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टैंपरेचर है, एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इनवॉल्वड, जिवें इस रिएक्शन के नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एन ने, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। एफ फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम होंदा। उपर आपां प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन लिखनी है, नीचे आपां रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लिखनी है। क्लीयर ना। अगे मैं एक इंपॉर्टेंट गल जी तुहानूं दसनी चाहना, जिथे किते भी प्योर सॉलिड आ गया, प्योर सॉलिड आ गया, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ है वो हमेशा यूनिट ही पुट करनी है, बिकॉज वो सॉलिड फेज ਦੇ ਵਿੱਚ है, प्योर सॉलिड है, सोल्यूशन फेज ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आ रहा, प्योर सॉलिड फेज ਉਹਦਾ सोल्यूशन च इनवॉल्व नहीं हो रहा, सो आप कंसनट्रेशन भी नहीं काउंट करांगे ਉਹਦੀ, सो आप कंसनट्रेशन ਉਹਦੀ 1 मन के चलांगे। ठीक है जी। तो ये हो गया सॉलिड फेज के लिए कंसनट्रेशन। नो अगे आप थोड़ी जी इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लीए, ई एम एन पॉजिटिव एम इज़ इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव टू एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ 1 बाय एम एक्वस एम एन पॉजिटिव एक्वस। ठीक है जी। मैं नैचुरल लॉग नूं लॉग टू द बेस 10 दे विच चेंज करता, नैचुरल लॉग नूं लॉग टू द बेस दे विच चेंज करना होवे तो ये फैक्टर अगे लग जाता 2.303। ठीक है जी। यदि कंसनट्रेशन आप हुणे यूनिटी के तो इत्थे आप 1 पुट करता, नीचे आप एम एन की कंसनट्रेशन पुट कर दी। सो अगर आप किसी भी होर स्टेट पे, किसी भी एनी स्टेट पे आप ई ऑफ द सैल फाइंड आउट करना है, तो आपको एक चीज़ तो ये चाहिए है कि उस इलैक्ट्रोड का स्टैंडर्ड स्टेट पे पोटेंशियल कितना, एक आपको एन की वैल्यू चाहिए है, एफ की वैल्यू आपको पता होएगी, आर की वैल्यू पता होएगी, यूनीवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, टैंपरेचर आपको गिवन होएगा, एक आपको कंसनट्रेशन पता होनी चाहिए है। अगर आपको सोल्यूशन की कंसनट्रेशन पता है तो आप ई ऑफ द सैल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं थोड़ी जी होर मॉडिफिकेशन करदा इहदे विच, अगर अपने को टैंपरेचर 298 कैलविन है, स्टैंडर्ड टैंपरेचर है, बट कंसनट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं हैगी, टैंपरेचर स्टैंडर्ड है, तो ये इक्वेशन थोड़ी जी होर रिजॉल्व हो जाएगी, सौखी हो जाएगी। ई नॉट एम एन पॉजिटिव टू एम 0.059 बाय एन लॉग ऑफ 1 बाय एम एन पॉजिटिव एक्वस। तो थोड़ी जी इक्वेशन होर भी ये रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है जी। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई लास्ट, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सैल पोटेंशियल ऑफ एन इलैक्ट्रोड। क्लीयर। तो यह होगी नर्स्ट इक्वेशन। देखो नर्स्ट इक्वेशन के की है, जो सैल पोटेंशियल है इसका रिलेशन है कंसनट्रेशन के नाल, इसका रिलेशन है टैंपरेचर के नाल। देखो टैंपरेचर आपने लिखा सी, टैंपरेचर तो कंसनट्रेशन का सैल पोटेंशियल के नाल की रिलेशन बनता है वो आप ड्राइव किया। ठीक है जी। तो यह आ गई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की एक इदां दी इक्वेशन है जिहदे आप सैल पोटेंशियल का कंसनट्रेशन के नाल की रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं। देखो अगर कंसनट्रेशन चेंज करेगी तो सैल पोटेंशियल भी चेंज करेगा, अगर कंसनट्रेशन यूनिट ही है तो वो सैल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पर आ जाना है, एंड सो ऑन। ठीक है।
अगर स्टैंडर्ड स्टेट ते आपां सैल पोटैंशियल फाइंड आउट करना चाहुंदे आ नो डाउट SHE यूज़ कर सकते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड स्टेट तो इलावा किसी होर स्टेट ते पोटैंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आपां तो SHE दे नाल सही रिजल्ट नहीं आते हैगे। सो आपां ये चीज़ उत्थे यूज़ करनी है। तो यह होगी नर्स्ट इक्वेशन। नैक्सट टॉपिक है, नैक्सट टॉपिक इज़ एप्लीकेशनस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जी आपां हुणे इक्वेशन ड्राइव की आ उहदियां एप्लीकेशनस की ने, किहड़े थां ते आपां नूं अप्लाई कर सकते हैं, की टर्म्स आपां उहदे नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली चीज़ है सैल पोटैंशियल ऑफ ए सैल। एक अपने को फुल सैल है जिहदे विच एनोड कैथोड सॉल्ट ब्रिज सारा कुछ लग्या होया है। उस सैल का सैल पोटैंशियल टोटल कितना होएगा अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी स्टेट ते, तो आप नर्स्ट इक्वेशन नाल अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी नर्स्ट इक्वेशन नाल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सैकेंड है कंसनट्रेशन ऑफ द सैल। सैल दे विच एनोड ते कैथोड होएगा, एनोड वाले सोल्यूशन दे विच डिप होएगा, कैथोड वाले सोल्यूशन दे विच डिप होएगा। जिहड़े सोल्यूशनस ने सोल्यूशनस दे विच आयन्स की कंसनट्रेशन कितनी होएगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। थर्ड है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सैल। जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सैल है ऑफ द रिएक्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा RG। R मीनस रिएक्शन, डेल्टा मीनस चेंज, G मीनस गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी तो आप गिव्स फ्री एनर्जी आप क्यों काउंट करांगे, क्यों आप मेजर करांगे वो आप अगे पढ़ांगे। नैक्सट है इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट ऑफ द सैल। कई बार की होंदा है सैल वर्क करना काम जिहड़ा हैगा बंद कर दिंदा है, इट मीनस वो रिएक्शन दे विच इक्विलिब्रियम आ जाती है। तो आप अगर किसी भी सैल का इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट फाइंड आउट करना होवे कि किन्ने के टाइम बाद या किन्ने के एक्सटेंट ते इहदी इक्विलिब्रियम आएगी, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। वन बाय वन आप सारे करते हैं तो इन्हों के नाल दे जिहड़े न्यूमेरिकल्स ने वो भी आप नाल ही कर लाँगे। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है सैल पोटैंशियल ऑफ द सैल, सैल पोटैंशियल ऑफ द सैल बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। पहले आप सपोज कर लें कि अपने को एक रिएक्शन है जिहदे विच Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड आपस में एक्सचेंज होंदे ने टू फॉर्म अपने को एक सैल है जिहदे विच Zn सॉलिड है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस बन गया एंड कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक, ये आप इलैक्ट्रोकैमिकल सैल डिटेल दे विच पढ़िया होया है, वही एक रिडॉक्स रिएक्शन आपने लिख ली है। इत्थे जिहड़ा जिंक है वो एज ए एनोड काम कर रहा है, जिहड़ा कॉपर है वो एज ए कैथोड काम कर रहा है। ठीक है, तो आप की करना दोनों हाफ सैल्स की रिडक्शन इक्वेशन लिखनी है, जिमें जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलैक्ट्रॉन जिंक सॉलिड बन गया। पहले आप इस ते जी नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करांगे, Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn, सेम ही है जिमें आप पिछले दे विच अप्लाई किया सी, माइनस 2.303 लॉग ऑफ RT बाई NF। N मीन्स नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने थे 2 इंटू F लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो इतने प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन की है सॉलिड फॉर्म च है, सो आप इतने यूनिटी पुट करांगे अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आप इदा ही पुट कर देंगे 2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव। नाउ सेम इक्वेशन आप अप्लाई करांगे कॉपर के लिए। कॉपर को पहला रिडक्शन फॉर्म च लिख लो, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलैक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड। तो इतने लिखांगे आप E ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर जिहड़ा हैगा 2 पॉजिटिव तो कॉपर दे विच चेंज हो रहा इज़ इक्वल टू E0 ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस 2.303 RT बाई NF। इत्थे भी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स 2 इनवॉल्व हुए ने, सो 2 आ गया। लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्योर सॉलिड, सो 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फेज। सो ये 2 इक्वेशनस आ गई, एक इक्वेशन आ गई जिंक वास्ते, एक इक्वेशन आ गई कॉपर वास्ते। आप पूरे सैल के लिए फाइंड आउट करने हैं। देखो ये आ गया सैल पोटैंशियल एनोड का, ये आ गया सैल पोटैंशियल कैथोड का। अपने को ओवरऑल सैल का पोटैंशियल होता है E ऑफ द सैल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड
माइनस ई ऑफ एनोड। ये आप फॉर्मूला किया हुआ है जो आप एप्लीकेशनस पढ़िया सी इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दियाँ। ई ऑफ द सैल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड, ई ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये आ गया ई ऑफ एनोड, ये आ गया ई ऑफ कैथोड। तो ई ऑफ द सैल की हो गया अपने को ई ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, यानी कि आप सैकेंड इक्वेशन चों फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे तो अपने को जी नैट इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगा ई ऑफ द सैल। आप करते हैं अगे, देखो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कॉपर मीनस आ सारे दे विचों ये सारी इक्वेशन माइनस करनी है, ये विचों ये माइनस करनी है, ये सारी इक्वेशन इदा लिखी जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएंगे मीनस इत्थे माइनस आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा प्लस। तो कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर ई नॉट जिहड़ा हैगा ये एवें आ जाएगा ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। एक तो ये आ गया, नाल दूसरा की आ गया इत्थे की है माइनस 2.303 RT बाय 2F लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, आगे आ गया प्लस 2.303 RT बाय 2F लॉग ऑफ 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस कंसनट्रेशन। ठीक है जी, माइनस करके ये आ गया, ये दोनों इक्वेशनस आप मिटा दें क्योंकि आपने माइनस कर लिया। नाउ हुण देखो ई ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक मीनस ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये आ जाएगा अपने को ई नॉट ऑफ सैल, ई नॉट ऑफ सैल। कैथोड चो एनोड का पोटेंशियल घटा दोगे तो सैल का पोटेंशियल आ जाएगा, बट ये स्टैंडर्ड स्टेट से तो इतने भी आप स्टैंडर्ड स्टेट लगा ली, ये किसी होर स्टेट पर है। नाउ इन्होंने दोनों इक्वेशनस के विचों 2.303 एक तो कॉमन आता है, RT कॉमन आता है तो 2F कॉमन आता है, बाकी की रह गया लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। देखो माइनस बाहर कटिया तो इतने माइनस आ जाएगा लॉग ऑफ 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। ठीक है जी, नाउ अगे ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इज 2.303 RT बाय 2F। नाउ हुण देखो जिहड़ी ये माइनस की इक्वेशन है, सॉरी माइनस का साइन है, इन्हूं आपां एडजस्ट कर सकते हैं, जिंक नूं आपां उपर ले जा सकते हैं तो प्लस च हो जाएगा मीनस अपने को ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन प्लस लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। ठीक है, एवं आ जाएगा, क्लियर। नाउ अगे देखो हुण अगर लॉग प्लस च होण तो प्रोडक्ट च आ जाते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी हुंदा जिहड़ा लॉग ए बी आ जाता है, तो इत्थे आ गया ई ऑफ द सैल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सैल माइनस 2.303 RT बाय 2F। इत्थे आ गया अपने को लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। क्लियर, तो ये आ गई अपनी पूरे सैल के लिए इक्वेशन, पूरे सैल के लिए इक्वेशन आ जाएगी। तो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन पहला आप हाफ सैल की नर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर दूसरे हाफ सैल की की, फिर आप ओवरऑल सैल की फाइंड आउट करनी। इट मीनस आप जी नर्स्ट इक्वेशन है कल्ले कल्ले इलैक्ट्रोड से तो लगा ही सकते हैं, पूरे इलैक्ट्रोड से भी लगा सकते हैं, सॉरी पूरे सैल से भी लगा सकते हैं, पूरे सैल का जोड़ा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन की सी अपने को Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वस, ये वाली इक्वेशन से अपने को। तो देखो ये आप किया की है, सारा कुछ वही है। इतने आपने पहला एक इलैक्ट्रोड का सैल पोटेंशियल आता से, इतने आ गया अपने को पूरे सैल का पोटेंशियल, इतने स्टैंडर्ड स्टेट के सैल का पोटेंशियल, बाकी चीज़ उमें रही है लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के विचों सिर्फ यदी कंसनट्रेशन लगेगी क्योंकि ये प्योर सॉलिड है, यूनिटी पुट करांगे। सेम ही रिएक्टेंट के विचों यदी कंसनट्रेशन लगेगी क्योंकि ये प्योर सॉलिड है, यदी यूनिटी आप कंसनट्रेशन पुट करते हैं।
सो डेरीवेशन करन दी बजाय आप डायरैक्ट यही इक्वेशन तो पूरे सैल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी, ई ऑफ द सैल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सैल माइनस 2/2.303 RT बाई 2F। 2F क्यों लगाया, क्योंकि 2 इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। ठीक है जी, तो हुण आपां इहदे बेसिस ते एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉल्वड न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व। तो न्यूमेरिकल है की है, पहले आपां तुहानूं दस दईए। हाँ जी, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल फस्ट एप्लीकेशन के बेसिस से न्यूमेरिकल है। तुहाडे कोल एक सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। ये जिंक की रॉड डिप की हुई है, ZnSO4 सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। ये जी कंसनट्रेशन है वो हैगी है 0.1 मोलर। कंसनट्रेशन इज 0.1 मोलर, जिंक रॉड डिप की हुई है। अच्छा, एक चीज़ होर ये लिखी हुई है कि जिंक सल्फेट 95% डिसोशिएट होया, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होया, सिर्फ 95% डिसोशिएट होया। नाउ आप पढ़ते हैं ZnSO4, इन्हें की प्रोवाइड करना है, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नैगेटिव। ये चीज़ आप इन्हें प्रोवाइड करनी है। आपको कंसनट्रेशन कादी चाहिए है, Zn2 पॉजिटिव की। देखो अगर तो यह 100% डिसोशिएट होया हुंदा तो जिन्नी कंसनट्रेशन ये सी उन्नी ही कंसनट्रेशन ये होंगी, बट ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होया। मैं एक एग्जाम्पल लैके समझाना, जिमें 100 पार्टिकल्स ने, 100 के विचों 80 डिसोशिएट हो गए बट 20 रह गए। इट मीनस अगर ये कंसनट्रेशन 100 सी तो आयंस की कंसनट्रेशन तो 80 हुई, 100 ना हुई। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। मीनस Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन होने थे 0.1 मोलर नहीं है। ठीक है, की है फिर 95% डिसोशिएट हुए है। ZnSO4 की कंसनट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, किन्ने परसेंटेज डिसोशिएट हुआ 95%, यानी कि 95/100। तो की आ जाएगा अपने को आंसर 0.095 मोलर। तो Zn2 पॉजिटिव की इतने कंसनट्रेशन कितनी आ गई 0.095 मोलर। तो आप कंसनट्रेशन लिख ली Zn2 पॉजिटिव की, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक इलैक्ट्रोड आपको इसका गिवन है। ओके, E of Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस, क्योंकि जी ये पूरा न्यूमेरिकल दिता होया स्टैंडर्ड स्टेट से दिता होया 298 कैल्विन से, तो मैं इतने डायरैक्ट लगा देना 0.095/n लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की बानी होएगी Zn2 पॉजिटिव। अगर मैं इतने इक्वेशन लिखदा Zn2 पॉजिटिव टू 2 इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, Zn सॉलिड बन गया। यही जोड़ा सैल पोटेंशियल है वो आप लिखना। तो हाफ सैल की इक्वेशन आ गई रिडक्शन फॉर्म च, ये मैं नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी। की चीज़ आपको गिवन ने, एक तो Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आपको गिवन है, कंसनट्रेशन हैगी 0.0, हुणी आपने फाइंड आउट की सी 0.095 मोलर। एक होर चीज़ आपको गिवन है, दैट इज़ E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये दिता हुआ आपको -0.76 वोल्ट। ठीक है जी, तो आप E नॉट ऑफ द सैल इत्थे पुट कर देंगे -0.76 वोल्ट माइनस 0.059/2 आ गया, क्योंकि 2 इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन के। लॉग ऑफ इत्थे आप पुट करेंगे Zn2 पॉजिटिव की जगह पर 0.095, जन मैं भी लिख सकता है 95 ऊपर आ गया 1000। ठीक है, बाकी ये सारिया टर्म्स तुम काउंट कर सकते हो, प्लस माइनस है, सिर्फ लॉग च प्रॉब्लम आएगी 1000/95। इनू आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1000 माइनस लॉग ऑफ 95। लॉग ऑफ 1000 यानी कि लॉग ऑफ 10⁻⁶, लॉग ऑफ 95 इहदा आ गया लॉग 3 × 1 माइनस लॉग ऑफ 95 का 1.9777 आ जाता है। सो लॉग नूं मैं सॉल्व करता, बाकी टर्म्स तुसीं सॉल्व कर लईआं ने। ई ऑफ द सैल तुसीं फाइंड आउट करना, ई ऑफ द इलैक्ट्रोड सॉरी
फाइंड आउट। ये सिर्फ एक इलैक्ट्रोड का इलैक्ट्रोड पोटैंशियल फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकल से, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन एक सिंगल इलैक्ट्रोड से किद्दां अप्लाई करनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड न्यूमेरिकल से। हुण आपां करते हैं, अगर अपने को फुल सैल दिता होवे ਉਹਦੇ ते आपां किवें अप्लाई कर सकते हैं। फुल सैल दे लई ਇਹਦਾ न्यूमेरिकल आपां करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन फॉर फुल सैल, ਉਹਦੇ ਲਈ आपां एक सैल कंसीडर करते हैं। अपने को एक सैल गिवन है, सैल है अपने को निकल सॉलिड है, निकल 2 पॉजिटिव एक्वस है जिसकी कंसनट्रेशन आपको गिवन है 0.01 मोलर, सॉलिड ब्रिज है। अगे है कॉपर 2 पॉजिटिव, इसकी कंसनट्रेशन आपको दी हुई है 0.1 मोलर, कॉपर सॉलिड आ गया, ठीक है जी। सैल की नोटेशन दी हुई है आपको, यदा पढ़े ई नॉट ऑफ सैल फाइंड आउट करना है। ई ऑफ सैल आपको गिवन है, ई ऑफ द सैल अपन दिता होया 0.59 वोल्ट। सो अपन सारिया टर्म्स दित्तियां हुई ने, आप इत्थे नैक्सट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आएगी ई ऑफ द सैल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सैल माइनस, क्योंकि टैंपरेचर इत्थे 298 कैलविन है, सो मैं डायरैक्ट पुट करदा 0.059 बाई एल। हुण तुसीं इत्थे देख सकते हो कि 2 इलैक्ट्रॉन ही इनवॉल्व हो रहे हैं ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन के लिए। तो इतने लग जाएगा 2 लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन मीनस निकल 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन मीनस कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। ये किमें पता लगेगा, ये तुसीं इक्वेशन ड्राइव करनी है, लिखनी है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कॉपर सॉलिड प्लस निकल 2 पॉजिटिव एक्वस। तो इतों पता लग जाएगा प्रोडक्ट किहड़ा रिएक्टेंट किहड़ा, इक्वेशन राइट करके देख लेनी है, ठीक है जी। नाउ अगे हुण आपां नूं कॉपर की तो निकल की कंसनट्रेशन गिवन है, सो आपां इहदे विच पुट कर देंगे ई नॉट ऑफ द सैल कढ़ लाँगे, क्योंकि ई ऑफ द सैल आपां नूं 0.59 गिवन है। ये आपां फाइंड आउट करना है, 0.059/2 आ गया। लॉग ऑफ निकल 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन 0.01, कॉपर 2 पॉजिटिव की 0.1, घटा के कितना आ गया, ये कला लॉग वाला सॉल्व करके दस देना है। लॉग ऑफ 0.1 आ गया, ठीक है। लॉग ऑफ 0.1 यानी कि लॉग ऑफ 10⁻⁻⁻1, यानी कि इनू सॉल्व करके आ गया -1, तो इनू सॉल्व करके -1 आ गया, यानी कि इतने प्लस लग जूगा, तो सारी इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर तुम इनू फर्दर सॉल्व करते हो तो अपने को जो ई नॉट ऑफ द सैल आ जाता है, वह आंसर आ जाएगा अपने को 0.5605 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ द सैल की आ गया इस सैल का 0.5605 वोल्ट। तो जोड़ा फस्ट न्यूमेरिकल किया वो सिर्फ सिंगल इलैक्ट्रोड पर अप्लाई करके वेख्या सी, जोड़ा ये वाला न्यूमेरिकल है फुल सैल का न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। तो फस्ट एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट हो गई। सैकेंड एप्लीकेशन, second application is calculation of concentration of the solution, calculation of concentration of the solution। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ न्यूमेरिकल है अपने को एक सैल है Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज कैडमियम 2 पॉजिटिव, यदि कंसनट्रेशन गिवन है आपको M1 2 कैडमियम सॉलिड, यदि कंसनट्रेशन आपको 0.1 मोलर गिवन, ठीक है जी। यानी कि आप इस सैल दे विच M1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। इस सैल का जोड़ा इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दिता होया 0.3304 वोल्ट दिता होया, ठीक है। ये हैगा ई ऑफ द सैल, ई नॉट ऑफ द सैल इत्थे डायरैक्ट गिवन नहीं हैगा, बट ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड आपां नूं पता लगा के ये फाइंड आउट करना पेगा। इत्थे जिहड़ी कैथोड है, कैथोड किहड़ी अपने कोल कैडमियम, कैडमियम का इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दिता होया आपां नूं -0.40, ठीक है जी। तो जिंक का दिता होया आपां नूं -0.76, मीनस ये कैलकुलेट करके अपने को आ जाएगा ई ऑफ द सैल 0.36 ई नॉट ऑफ द सैल। कई बार तो की होंदा ई नॉट ऑफ द सैल डायरैक्ट गिवन होंदा है,
कई बार की दिता होंगे ई नॉट ऑफ कैथोड दिता होंगे तो ई नॉट ऑफ एनोड दिता होंगे तो एक स्टैप होर भी अगे जाना पैंदा आपां नूं तो उत्थे आपां की करना पहला ई नॉट ऑफ द सैल फाइंड आउट कर लेना हुण अपने कोले ई नॉट ऑफ द सैल फाइंड आउट हो गया ई ऑफ द सैल फाइंड आउट हो गया एक इलैक्ट्रोड के जिहड़े आयन्स ने उन्हां दी कंसनट्रेशन पता है दूसरे की फाइंड आउट करनी है 298 केल्विन ते सैल कम कर रहा है सो ई ऑफ द सैल इज़ इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सैल माइनस 0.059 बाई 2 क्योंकि दो इलैक्ट्रोड इन्वॉल्व हो रहे हैं अंडरस्टूड है लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव बाई कंसनट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव ठीक है जी ये लग गया ई ऑफ द सैल कितना दिता हुआ है ई ऑफ द सैल हैगा 0.3304 ये हैगा माइनस 0.36 ये आ गया 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन हैगी 0.1 तो कैडमियम की अपने फाइंड आउट करनी है ठीक है जी ये आ गया ना अगे इनू आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 0.1 माइनस लॉग ऑफ m1 ठीक है जी लॉग ऑफ 0.1 माइनस 1 आ गया ये आ गया अपने को m1 यानी कि आप लॉग में सॉल्व करके ये लगा दें ठीक है जी ना अगे आ गया 0.3304 इज़ इक्वल टू माइनस 0.36 अगे आ गया माइनस 0.059 बाई 2 इत्थे आ गया माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ m1 ये आ गया कैलकुलेट करके अगे अगर आप इनू सारे कैलकुलेट करते हैं तो मैं डायरैक्ट लिख रहा इतने क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाती है लॉग ऑफ m1 माइनस 2 के इक्वल आ जाता है कैलकुलेट करोगे तो सारा एम ही आएगा मीनस आप m1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इट मीनस आप इधरले पासे लॉग बनाना है तो आप इनू इदा लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10⁻⁻²। अगर आप 10⁻⁻² का लॉग लवेंगे तो -2 आ जाएगा हुण देखो लॉग ना लॉग कट गया m1 की कंसनट्रेशन कितनी आ गई -2 मोलर तो अपने को कंसनट्रेशन आ गई सो आप नर्स इक्वेशन यूज़ करके किसी भी सैल के आयन्स की कंसनट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ये आप कॉपर की फाइंड आउट की है ठीक है सॉरी कैडमियम की फाइंड आउट की है सेम ही आप जिंक की कर सकते हैं सेम ही अपने को अगर कोई होर इलैक्ट्रोड है होर कोई सैल है वो होर आयन्स ने जोड़े उन्होंने कंसनट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो नर्स इक्वेशन अप्लाई करके आप कंसनट्रेशन ऑफ एनी आयन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बाकी टर्म्स गिवन ने जस्ट आप नर्स इक्वेशन अप्लाई ही करनी है नाउ नैक्सट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सैल यानी कि सैल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी जरूरत की है कई बार सैल काम कर रहा है ठीक है एनोड तो ऑक्सीडेशन हो रही सॉरी कैथोड तो रिडक्शन हो रही है सैल वर्क करी जाता जिवें आप एक ग्राफ नाल समझा रहे हैं ग्राफ के अपने को इधर हैगा प्रोग्रैस ऑफ रिएक्शन इधर हैगा पोटेंशियल ठीक है जी एनोड तो ऑक्सीडेशन होंदी है एनोड का सैल पोटेंशियल टाइम के नाल इनक्रीज़ करता है कैथोड का सैल पोटेंशियल टाइम के नाल डिक्रीज़ करता एक स्टेज से आके दोनों का सैल पोटेंशियल सेम हो जाता मीनस उत्थे सैल वर्क करना बंद कर देता है इनू आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर एग्जाम्पल जिंक तो कॉपर का सैल है अपने को तो आप इक्विलिब्रियम में किमें लिखांगे Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस इक्विलिब्रियम कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वस तो इक्विलिब्रियम लिख देंगे आप ठीक है जी तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आएगी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव बाकी क्यों नहीं लिखे क्योंकि बाकियों की कंसनट्रेशन आपने यूनिटी पुट करनी है तो उत्थे अपने को जो लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं तो उत्थे आप लिखेंगे लॉग ऑफ के तो के की वैल्यू आप फाइंड आउट करांगे तो यही सैल के लिए आप इक्वेशन अप्लाई करके देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन के दी फॉर्म तो वह अपने को आ जाएगा E of the cell is equal to E naught of the cell minus 2.303 RT by NF log of K। ना अगर आपको ए टर्म गिवन है R वैल्यू पता T पता N पता F पता तो आप K की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है जी
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਦਾ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਵਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ। लास्ट है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस RT ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਆਫ K ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ K ਤੇ ਗਿਵਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਦਾ। ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਵਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗਿਵਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਦੱਸਦੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ G ਵੈਲੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ K ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਲਟਾ G ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਡੈਲਟਾ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੈੱਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੇਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ। ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ, ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ, ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਨਸ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ G ਦੀ ਵੈਲੂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਤੇ K ਦੀ ਵੈਲੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। K ਦੀ ਵੈਲੂ ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ G ਦੀ ਵੈਲੂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਸ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਸ। A cell in which both the electrodes are same, both the electrodes are same type, but the solutions of electrolyte in which they dip are of different concentration, are called concentration cells। ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ C1 ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ C2 ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰੋਡ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਪ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦਾ।
ਰੋੜਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਥੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੱਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਉਹ ਐਨੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੈਥੋਡ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਐਨੋਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਐਨੋਡ ਕੈਥੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੇਮ ਹੋਣ ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਨ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਪਰ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਵਾਲੇ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਸਲਫੇਟ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਆਇਨਸ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲਸ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ Zn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ Zn ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 0.76 ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੀਨਸ 1 ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ 1 ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈ ਸੈੱਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਬਾਏ।